Good morning, dear students. Dear students, in the previous class we have discussed about the growth models. We said that every population shows a specific type, a predictable type of growth pattern. मतलब हर एक जो पॉपुलेशन है वो आइदर एक्सपैंडिंग होती है या तो डिक्लाइनिंग होती है या तो फिर स्टेबल होती है. पर ये पॉपुलेशन हमें पता कैसे चलेगा दैट वेदर इट इज एक्सपैंडिंग और वेदर इट इज डिक्लाइनिंग? That can be detected by the topic that we discussed in the previous class, which was that birth rate, death rate, immigration and emigration were the four factors which were affecting the population size. Out of them also, birth rate and the death rate were very important. But at the places which are being newly colonized, at the place which जहाँ पे ऑलरेडी कोई हैबिटेट एग्जिस्ट नहीं हो रहा था, कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं हो रहे थे वो हैबिटेट में, पर अब क्या हो रहा है कि सम ऑर्गेनिजम्स आर कोलोनाइजिंग एट दैट न्यू प्लेस. तो उस टाइम पे इमिग्रेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. So birth rate and immigration, if the value is high, it indicates that the population will be increasing. And if the value of the death rate and immigration is high, it shows that the population is declining. So these populations were studied by the population growth models. So we have discussed that there were two types of growth models. हमने जो बात की थी कल, that was about the exponential growth model. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल जो था उसमें क्या बताया गया था दैट रिसोर्सेज जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, और अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो तो हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव फिटनेस से रिप्रोड्यूस करेगा, एंड दैट वाज डिनोटेड बाय स्मॉल r. So population is going to increase so much, right? Because there is no barrier, no checkpoint that is going to limit the population. क्योंकि रिसोर्सेज तो अबेंडेंटली अवेलेबल ही है, फूड अवेलेबल है, शेल्टर, स्पेस, एवरीथिंग इज अवेलेबल. So there is no checkpoint in the nature which is going to limit the population, and therefore the growth curve that was observed was a J-shaped growth curve, that the population keeps on increasing. But is it actually possible in nature that there is no checkpoint for the population growth? No. It's not possible because the resources are never unlimited. हमारे पास जो resources है, food है, water है, right? ये resources कभी भी unlimited नहीं होते, ये हमेशा limited ही होते हैं. They are able to support a maximum of population, but beyond a certain level, they will not be able to accommodate the individual or the organisms. And that gives us a concept of another growth model, and it is known as logistic growth model. So second that we are going to discuss is logistic growth model. मतलब ग्रोथ मॉडल्स दो थे, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक. एक्सपोनेंशियल की हमने प्रीवियसली बात की कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड अगर होंगे तो ग्रोथ कर्व कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिटेशन ही नहीं है. सो इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी वर्सेस टाइम t, we will get a continuous increase in the population, a continuous rise in the population. Okay, and that is actually not possible in the nature. So now we are talking about the second type of growth model, जिसे कहते हैं logistic growth model. Now we know that resources in a particular habitat can never be unlimited. The resources in a habitat can never be unlimited to show an exponential growth. मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं, राइट, जो फूड है, वाटर है, ये रिसोर्सेज कभी भी अनलिमिटेड नहीं होते, और अनलिमिटेड अगर नहीं होंगे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कभी भी देखने को मिलेगा नहीं. रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, और लिमिटेड होने की वजह से ऑर्गेनिजम्स के बीच में कंपटीशन होता है फॉर द सेम रिसोर्सेज, एंड देयरफॉर कंपटीशन is observed
among the organisms for survival, right? रिसोर्सेस जब लिमिटेड हैं, अगर रिसोर्सेज ही लिमिटेड हैं तो लिमिटेड रिसोर्सेज को लेने के लिए दो ऑर्गेनिजम्स को compete तो करना ही पड़ेगा. सो दे विल बी competing for getting those resources, right? और competition में जो जीतेगा that will be surviving and that will be reproducing. So the one who is fittest will survive and reproduce. तो यहाँ पे समझना क्या है, that resources जो होते हैं वो हमेशा limited होते हैं. लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे के साथ compete करना पड़ता है to get a particular resource, even if they are belonging to the same species or even if they are belonging to different species. पर ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे के साथ compete करना पड़ता है to get that resource. और यही इनमें से ही जो सबसे फिट होगा that will be able to get that resource, that is the organism which is going to survive and it is going to reproduce, right? जैसे कि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, in order to regulate the population it keeps certain checkpoints, certain barriers, right? Some of the government schemes or government advantages are only for the first child and not for the second child. Why such barriers are being kept? So that the population can remain limited. So similarly, nature also puts certain barriers against the rapid growth of the population, and these barriers are very much essential, otherwise population will grow exponentially. Okay, so in this limited resources, what is important, that nature has a capacity to accommodate maximum individuals. Okay, so nature has enough resources to accommodate maximum population. वैसे तो नेचर के पास इनफ रिसोर्सेज है और इस इनफ रिसोर्सेज से मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है इट कैन बी एकोमोडेटेड, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट ओनली. मतलब दे कैन अकोमोडेट द ऑर्गेनिजम्स. नेचर जो है उसमें इतने तो इनफ रिसोर्सेज हैं ही कि वो मैक्सिमम पॉपुलेशन को सेटिस्फाई कर सके, but that is also up to a certain extent, beyond which the population growth is not possible. So beyond which population growth is not possible. मतलब एक ऐसी लिमिट आ गई है जिसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो दिस लिमिट ऑफ द नेचर इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी. दिस लिमिट इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी. So what are we trying to say? We are saying that कोई भी ऐसा हैबिटेट नहीं होता जहां पे अबेंडेंटली रिसोर्सेज अवेलेबल हो. अब कोई भी हैबिटेट में अबेंडेंट रिसोर्सेज नहीं होते तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में कंपटीशन होगा और यही कंपटीशन में जो सरवाइव कर पाएगा, जो सबसे फिट होगा, वही रिप्रोड्यूस करेगा. तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं दैट द ऑलवेज रिसोर्सेज जो है वो इतने तो हैं ही कि मैक्सिमम पॉपुलेशन को सेटिस्फाई कर सके, बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट. इसके बाद अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या होने लगेगा, कंपटीशन होने लगेगा और सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा सबका. एंड दैट शोज दैट देयर इज अ लिमिट व्हिच इज बीइंग सेट बाय नेचर. नेचर ने भी एक लिमिट सेट कर दी है that it can accommodate only this much number of individuals, and that limit is known as the carrying capacity, which is represented by capital K.
तो कैरिंग कैपेसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द नेचर टू एकोमोडेट द इंडिविजुअल्स, राइट। उसके बाद क्या होने लगेगा, देयर विल बी फाइट अमंग्स द ऑर्गेनिज्म, राइट। अगर आप 10 दिन से भूखे हो, राइट, एंड यू आर हैविंग वन पिज्जा इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर 50 स्टूडेंट्स, everyone is hungry since last 10 days. Obviously what you are all going to do, you are going to rush that over one pizza because you all are extremely hungry, right? So that is what you are going to compete. But if everyone is fully satisfied with their stomachs, is everyone going to compete for the same thing? No. तो अगर लिमिटेड नंबर है, रिसोर्सेज ज्यादा हैं, तो सेटिस्फैक्शन होगा, पर अगर रिसोर्सेज कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है तो सेटिस्फैक्शन होगा नहीं, एंड दैट वुड लीड टू व्हाट, कंपटीशन अमंग्स द स्पीसीज. सो दैट इज कैरिंग कैपेसिटी व्हिच इज द लिमिट सेट बाय द नेचर. तो ये जो ग्रोथ मॉडल है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, दैट मॉडल शोज दैट इफ वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ population density, that is n, versus time t. अगर हम ये ग्राफ बनाते हैं, okay, so that is population density n and this is at time t. So what we are going to get is somewhat S-shaped curve. अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है, that this is the carrying capacity. इसी की जगह पे जब हमने एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनाया था वर्सेस ऑफ n वर्सेस t, so that graph was what, like this, J shape, राइट. जे शेप ग्राफ क्या बताता है कि पॉपुलेशन एक बार बढ़ना शुरू हुआ तो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, राइट. सो दिस इज फॉर जे शेप ग्राफ. बट हमने ये जो देखा लॉजिस्टिक कर्व, व्हाट डज दिस शो, दैट इनिशियली द पॉपुलेशन इज गोइंग टू इंक्रीज वेरी स्लोली. Then after there will be a rapid acceleration phase where the population is rapidly going to increase. Then after is the phase called deceleration when the population increase will now slow down. And then after there is asymptote which shows that now the population is not going to increase. Increase क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि क्या आ चुका है? Carrying capacity. A limit is being set by the nature, right? तो यहाँ पे initially the lag phase is observed. Lag phase मतलब क्या, कि जब भी ऑर्गेनिज्म सिर्फ अभी एग्जिस्ट हुए हैं तो उनमें जो ग्रोथ है वो बहुत ही जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे दे आर गोइंग टू एक्लिटिमाइज टू द सराउंडिंग हैबिटेट. तो पहले पॉपुलेशन एकदम फटाक से नहीं बढ़ने वाली, धीरे धीरे इंक्रीज होती है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, लैग फेज. एक बार पॉपुलेशन लैग फेज से थोड़ी आगे निकले फिर क्या होगा, द पॉपुलेशन इज गोइंग टू इंक्रीज रैपिडली, क्योंकि अब ये ज्यादा एकोमोडेट हो गए हैं टू द चेंज एनवायरमेंट. सो देन आफ्टर द लैग फेज, आफ्टर विच एक्सेलरेशन फेज इज ऑब्जर्व्ड, राइट. तो पहला लैग फेज है, दूसरा क्या है, एक्सेलरेशन फेज. एक्सेलरेशन फेज में रैपिड ग्रोथ होने वाला है क्योंकि अब एनवायरमेंट भी अवेलेबल है, प्रॉपर हैबिटेट भी सूटेबल है और रिसोर्सेज भी अवेलेबल है. अब धीरे धीरे रिसोर्सेज कम हो रहे. सो देन आफ्टर कम्स द डिसलरेशन फेज एंड लास्टली देयर विल बी एसिम्प्टोट. एसिम्प्टोट कब आ जाएगा, एट कैरिंग कैपेसिटी, बिकॉज नेचर will not be accommodating more number of individuals. So there will be a time where you have got the value of carrying capacity. इसके बाद population नहीं बढ़ने वाली. तो लॉजिस्टिक ग्रोथ का जे शेप नहीं है, रैपिड ग्रोथ नहीं बताता. ये क्या बताता है, ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच है ये, क्योंकि जब भी कोई पॉपुलेशन हैबिटेट में आती है तो पहले जो है वो ग्रोथ बहुत स्लो होता है, तो लैग फेज होता है. फिर क्या होता है कि रैपिडली ग्रोथ बढ़ता है तो एक्सेलरेशन, फिर धीरे धीरे स्टेबल होने लगता है तो दैट इज डिसलरेशन, एंड देन आफ्टर इट इज एसिम्प्टोट, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी की लिमिट आ चुकी है और अब पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ नहीं पाएगी क्योंकि रिसोर्सेस कम हो गए हैं.
Okay, so this, if it is represented in the another, that is the form, so we will mention it as dn by dt is equal to Rn k minus n upon k. राइट, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं एक्सपोनेंशियल में dn by dt is equal to Rn, where R is the maximum reproductive fitness or intrinsic reproductive fitness of an individual. Over here what do we mention? We mention dn by dt is equal to Rn k minus n upon k. Okay, so that is R over here will be representing intrinsic rate of natural increase. R is intrinsic rate of natural increase. Intrinsic rate of natural increase मतलब क्या? हर एक ऑर्गेनिज्म के पास खुद की मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव फिटनेस तो है, राइट. अ पर्सन और ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस फॉर 10 टाइम्स इन अ होल लाइफ स्पैन. तो वो 10 होना मतलब क्या, मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव फिटनेस है उसकी. ठीक है. N shows what? Your population density, or you can say population size. K represents the carrying capacity. And dn by dt shows the population at a particular time t. तो यहाँ पे हमें लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो है, इट इज गिविंग अ मोर एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रोथ मॉडल दैट एग्जिस्ट इन द नेचर. दिस इज ऑल्सो नोन एज, अनदर नेम इज वर्हल्स पर्ल ग्रोथ कर्व. इसका दूसरा नाम है वर्हल्स पर्ल growth curve is another name for the logistic growth model. So that is, you have to remember two types of growth models, exponential and the logistic. And now we move on to the new topic, that is life history variations. So after discussing about the two types of growth models, that is exponential and logistic, now we move on to a very small topic that is to be understood very well, that is life history variations. Now we know that every organism which is existing in any habitat, it will try to reproduce with the maximum efficiency, and that is denoted by R. So every organism evolves to attain maximum reproductive fitness. Okay, that is R. कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी हैबिटेट में वो रहता हो, but every organism will be trying to evolve in such a way, to change in such a way that it can have a maximum reproductive fitness. उसकी reproductive efficiency maximum होनी चाहिए, which is also known as Darwinian fitness. Okay, which is also known as Darwinian fitness. मतलब reproductive fitness को ही Darwinian fitness कहा जाता है. तो हर एक ऑर्गेनिज्म में ये पोटेंशियल होता है कि वो अपना मैक्सिमम रिप्रोड्यूस कर सके, और इसी की वजह से वो कोई ना कोई ऐसी इफेक्टिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी बनाता है सो दैट इट कैन रिप्रोड्यूस मैक्सिमली. ओके, सो दे डेवलप एंड efficient reproductive strategy. तो हर एक ऑर्गेनिज्म खुद की एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएगा, राइट. आइदर ब्रीड एट द नाइट टाइम और ब्रीड एट द स्पेसिफिक सीजन टाइम. तो ये पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करना या तो फिर पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ब्रीड करना, दैट शोज व्हाट, दैट एवरी ऑर्गेनिज्म हैज डेवलप्ड some or other way to maximize their reproductive abilities, right.
तो रिप्रोडक्शन तो जो है वो बहुत ही एसेंशियल मैकेनिज्म है, बिकॉज दैट इज फॉर कंटिन्यूइंग योर जनरेशंस। तो रिप्रोडक्शन के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म ने खुद से एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, और यही स्ट्रेटेजी की वजह से उनकी पॉपुलेशन जो है वो मेंटेन्ड रहेगी, राइट। इफ दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस एंड सर्वाइव इन अनफेवरेबल क्लाइमेट्स, obviously their population will be decreased. So every organism tries to develop a maximizing their reproductive abilities, and maximize करने पर ही उनकी population sustain कर पाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं that there are some organisms which are breeding hardly once in their lifetime. ऐसे organisms होते हैं, some organisms breed only once in the lifetime. जैसे कि बाम्बू है, राइट, बाम्बू ट्री, उसमें आपने देखा होगा दैट फ्लावरिंग कम्स ओनली वंस आफ्टर सेवरल ईयर्स। तो पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार ब्रीड करते हैं। तो ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच विल बी ब्रीडिंग फॉर मेनी टाइम्स इन अ सीजन। So some organisms breed for once in a lifetime, and some organisms breed several times in the lifetime, right? जैसे कि कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, जैसे कि ह्यूमंस में भी है, तो उसमें कुछ सीजनल ब्रीडिंग ऐसा नहीं होता। दे विल बी ऑल टाइम ब्रीडर्स। ये कैसे होते हैं? कई सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। सीजनल मीन्स इन अ पर्टिकुलर सीजन ओनली दे ब्रीड। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स जो होते हैं वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, राइट। लिजर्ड्स जो है वो सीजनल, मतलब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ही ब्रीड करते हैं। देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स विच विल बी प्रोड्यूसिंग large number of small sized offsprings. Some organisms produce large number of offsprings, right? Large number of offsprings. एक बार रिप्रोड्यूस किया और बहुत सारे offsprings आ गए, और ये all offsprings are of small साइज। तो छोटी साइज के बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स बॉर्न हो जाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ पर्ल ऑयस्टर्स बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स आ जाते हैं, और बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स जो भी हैं वो सारे स्मॉल साइज के होते हैं। जबकि सम ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स। साइज बड़ी होती है बट लेस इन नंबर, मतलब होते ऑफस्प्रिंग्स एक या दो ही हैं, पर साइज बड़ी होती है, जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ऑर्गेनिजम्स ने कैसी स्ट्रेटेजीज डेवलप की है? कोई ऑर्गेनिज्म लाइफ टाइम में एक बार ब्रीड करता है, कोई ऑर्गेनिज्म लाइफ में सेवरल टाइम्स ब्रीड करता है, कोई ऑर्गेनिज्म एक ही बार में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स दे देता है, राइट। आपको शायद याद होगा, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक साइक्लोस्टोम्स। तो साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं, दे आर सच ऑर्गेनिजम्स व्हिच विल बी गिविंग नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स एंड देन आफ्टर दे डाई। तो ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑफस्प्रिंग्स तो बहुत ज्यादा नंबर में दे देते हैं, बट सारे ऑफस्प्रिंग्स बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, एंड देन आफ्टर मेनी ऑफ देम इवन डाई। ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके ऑफस्प्रिंग्स बहुत बड़ी साइज के होते हैं, बट उनका नंबर काफी कम होता है, एक या दो ही ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं, राइट। तो जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स। तो ये हम क्या बताना चाह रहे हैं? दैट एवरी ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड सम देयर ओन स्ट्रेटेजी। उनकी खुद की कोई स्ट्रेटेजी है फॉर द मैक्सिमम डार्विनियन फिटनेस, and how out of them which strategy is the best one that cannot be predicted. इसमें से कौन सी strategy सबसे ज्यादा efficient है that cannot be noted, right? So there will be several biotic and abiotic factors which will be affecting the life history of the organisms. So biotic and abiotic components will affect the life history
of the organism. मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज तो बहुत सारी हैं, पर इनमें से कौन सी सबसे एफिशिएंट है ये हम नहीं पहचान सकते. एंड देयरफॉर रिसर्च इज बीइंग गोइंग ऑन द लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन. Several ecologists are trying to find out that what can be the best way in which the maximum reproductive fitness can be attained. Because some are breeding for many times, some are breeding for one time, some produce large number of offspring, some produce small sized offspring. तो ये जो अलग अलग डेवलप किया है मेथड्स, ये सारे मेथड्स के बारे में अभी भी स्टडी चल रही है. और इन सारे रिप्रोडक्टिव फिटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय नोइंग द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स इन देयर सराउंडिंग. क्या बायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं या एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं तो फॉर द रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल, दैट इज बीइंग स्टडीड. So next thing that we have to study over here is the different types of population interactions. The next topic that we have to study is the population interactions. अब यहाँ पे समझ लेते हैं that कोई भी organism, like any species, cannot live in complete isolation. A species or a population cannot live in a complete isolation. They always are interacting with other group of organisms, maybe for the food or maybe for the other requirements, but they always show interaction. Are humans living only separately in a forest? No. What do? We also live in a society. We communicate with the people. We live with the people which are very similar to us in nature, right? तो ये जो हम develop करते हैं behavior, that is very important and that is known as what? Population interaction. So organisms or a population are never found in isolation. An organism or population are never found in isolation. There is at least a requirement of one more species, one more population for on which at least they can feed on. जिसपे वो प्रिडेट कर सके ऐसा कोई और एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट? तो देयर इज ऑलवेज एन इंटरैक्शन विद द अदर पॉपुलेशन. ऑलवेज दे इंटरैक्ट with individual of other population. तो वो दूसरे पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे एटलीस्ट फॉर फीडिंग, राइट? नथिंग एल्स बट एटलीस्ट फॉर फीडिंग दे रिक्वायर. So this dependence of the organisms on the other organism is termed as population interaction. There are different types of population interactions like mutualism, predation, parasitism, commensalism, amensalism. तो हम हर एक population के interaction के बारे में बात करेंगे with certain examples that have to be included in it. So for this topic we will be beginning in the next lecture, but always remember that every organism requires other organism for their survival. Even if we consider a plant, एक plant होता है तो plant भी खुद का existence नहीं रख सकता, क्योंकि plant depends upon the soil microbes for their organic matter. क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको ब्रेक करेंगे, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करेंगे और यही इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं. तो प्लांट्स की लाइफ भी सॉइल माइक्रोफ्लोरा के बिना पॉसिबल नहीं है, माइक्रोफोना के बिना पॉसिबल नहीं है, राइट? और दूसरा, प्लांट्स में पॉलिनेटर्स चाहिए और पॉलिनेटर्स मोस्टली क्या होते हैं? एनिमल एजेंट्स. So even a plant which is autotrophic cannot be isolated. Then how is it possible that animals can remain isolated? So animals always have interactions with one another, and that is the topic of population interactions, which we will begin in the next class.